बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबडी हु इज़ हियर, और आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आई बिलीव दैट एवरी वन ऑफ यू हैव गॉन थ्रू माई लेक्चर्स, और प्लीज़ माइक्स वगैरह ऑफ कर दो, और जब आई विल बी डन विद माई लेक्चर आई वुड बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क मी एनी क्यूरी इफ़ यू हैव. Okay, class. This chapter, I have started the chapter number 3. Chapter number 2. Chapter number 1 के अंदर you people have gone through the basic concepts of marketing and the steps in the marketing process. And in this chapter, आप ये discover करेंगे that that marketing operates in a complex and a changing environment. एक बात को ये बात नोट कर लो कि in this chapter you will be studying about that the market operates in the changing and the complex environment, right? It doesn't operate somewhere like in a way कि environment कभी भी एक जैसा नहीं रहता. Environment always keeps on changing, and in this regard this chapter will cover the area in which we are going to study about the environment के environment क्या होती है, और environment changing environment क्या होती है, और how can we keep up with the changing environment factors. So in this chapter you will discover that marketing operates in a complex and the changing environment. The actors in this environment, actors का मतलब actor वो लोग होते हैं या वो forces होती हैं जो किसी भी environment के अंदर act कर रही होती हैं. उनका अमल दखल जिस माहौल या जिस environment में अंदर होता है उसको हम actor बोलते हैं. And in this environment, suppliers, intermediaries, customers, competitors, publics, and other things are basically the parts of this particular environment. Acha, moving further, I'm going to start with the definition of marketing environment. Marketing का मतलब या marketing की definition, we all know that marketing is all about getting the profitable relationship with the customers. The profitable relationship with the customers always arise on the basis of identifying their needs, wants, and demands, and then making a product according to their perspective, and then selling the product and making the pricing of the product according to their perspective, their means, customers. And we are depending upon entirely 4 P's, which is directed towards the customers. Whereas environment is that particular aura around us and that particular place and that particular system around us जिसके अंदर हम operate कर रहे हैं. So marketing environment overall is the definition. The definition goes like this: the actors and forces outside marketing. Outside marketing means outside the organization that affect marketing management ability. जो marketing management की ability के ऊपर effect कर रही होती है वो तमाम लोग, वो तमाम ताकतें जो कि कंपनी से बाहर एग्जिस्ट कर रही हैं और कंपनी के हरकत के ऊपर, कंपनी की मूवमेंट के ऊपर, कंपनी की सोच के ऊपर, कंपनी की स्ट्रैटेजी के ऊपर असर कर रही हैं. किस चीज़ को करने में? टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप, जो कि मार्केटिंग का कोर है. मार्केटिंग का कोर क्या है? टू बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड द टारगेट मार्केट्स. इन चीज़ों को बनने के दौरान जो चीज़ें आप पे ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, दे आर कॉल्ड द मार्केटिंग एनवायरनमेंट. मोर देन एनी अदर ग्रुप इन द कंपनी के अंदर सारे ग्रुप्स कौन होते हैं कंपनी के अंदर? वो तमाम डिपार्टमेंट्स. कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के अंदर? एनी डिपार्टमेंट, लाइक अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लाइक अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट इन द कंपनी. उन तमाम डिपार्टमेंट से ज्यादा कौन मार्केट के साथ हैंडल कर रहा होता है? मार्केटर इज वन एंटिटी दैट इज बेसिकली हैंडलिंग द एनवायरनमेंट. दे आर द ट्रेंड ट्रैकर्स. ट्रेंड ट्रैकर कौन होते हैं? जो कि मार्केट के अंदर होने वाली चीजों को ट्रैक कर रहे होते हैं, जो मार्केट के अंदर आने वाली तब्दीलियों को ट्रैक कर रहे होते हैं, जो ये ट्रैक कर रहे होते हैं कि कंज्यूमर का जो जहन है वो बदल रहा है, तो उसकी वजूहात क्या है और हम इस बदलती हुई वजूहात को किस तरीके से केटर कर रहे होते हैं, और ये देखते हैं वो कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट. सो दिस इज ऑल समथिंग व्हिच इज डन बाय द मार्केटर. सो इस केस के अंदर अभी तक व्हाट यू हैव अंडरस्टूड दैट मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है, marketer basically क्या कर रहा है, and although every manager in an organization
needs to observe the outside environment. और organization के अंदर जितने भी managers हैं, other than the marketers, they all need to keep an eye on the outside environment. Marketers have two special aptitudes. Marketers के दो special किस्म के perspectives हैं, दो स्पेशल किस्म के एप्टीट्यूड्स हैं, राइट. एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि उनके अंदर ये दो क्वालिटीज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केटर, व्हाई मार्केटर इज डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द departments in the organization, because marketer has got a sense of communicating with the customer outside the organization. They have got the ability to converse and to talk to the environment which is outside the organization. So marketers aptitude needs to have, they need to have two aptitudes. Number one, they have disciplined methods that are marketing research and marketing intelligence. उनके पास डिसिप्लिन मेथड्स होते हैं. डिसिप्लिन मेथड्स क्या? वो तरतीब दिए हुए तरीके जिनसे वो मार्केटिंग को रिसर्च करते हैं, मार्केट को रिसर्च करते हैं. रिसर्च किस तरीके से करते हैं? दे गो टू द मार्केट, दे सिट इन द मार्केट, they have a partnership with the suppliers, they've got a partnership with the, they've got the talking terms with the other entities of the marketing, and then they have got the training of marketing intelligence. Marketing intelligence का मतलब क्या है कि नो हाउ रखना कि कस्टमर्स अगर चेंजेस हो रहे हैं, कस्टमर में चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, और फिर कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, और डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर से. They also spend more time in the customer and competitor environment. वो ज़्यादातर टाइम अपना फील्ड के अंदर गुजारते हैं. फील्ड वो जगह है जो कि मार्केट की प्रैक्टिकल जगह है. वो ज़्यादातर टाइम उधर गुजारते हैं और ये बात फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं that what are the trends going on in the market, what are the changes which are going in the market. They try to figure out all those things. There are two types of environments that marketers need to study and analyze. दो तरह की एनवायरमेंट्स हैं जिसको मार्केटर जो है वो स्टडी करना चाहता है और एनालाइज करना चाहता है. एनालिसिस, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग. एनालिसिस ऑफ डिटेल्ड एग्जामिनेशन. एनालिसिस का मतलब है किसी भी चीज को बारीकी से देखना, हर चीज के होने और करने के अंदर जो भी वजूहात शामिल हैं उसको सोचना. यू नीड टू बी हैविंग डिटेल्ड एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन का मतलब है कि एक एक नुक्ते को, एक एक चीज को डिटेल से देखना कि क्या है एक पर्टिकुलर चीज के होने की वजह, और अगर ट्रेंड बदल रहा है, किसी कंज्यूमर का माइंडसेट बदल रहा है या कंज्यूमर एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, इसके पीछे व्हाट आर द बेसिस व्हिच आर इन्वॉल्व. इन चीजों के ऊपर एनालिसिस करना मार्केटर का काम है. नाउ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट्स. मार्केटिंग एनवायरनमेंट दो एनवायरनमेंट्स के ऊपर बेस करती है. नंबर वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट क्या चीज है? द एक्टर्स क्लोज टू द कंपनी दैट इफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर्स. द एक्टर्स, वो एक्टर या वो एंटिटीज या वो फोर्सेस जो कि कंपनी के क्लोज हैं. माइक्रो मीन्स समथिंग which is controllable. Micro means something which can be tailored, which can be handled by the company itself. So the actors which are close to the company and it affects its ability to serve its customers is called the micro environment. Whereas the macro environment is that environment which is the larger societal forces that affect the micro environment. Societal forces, वो societal forces जो कि कंपनी की माइक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो इफेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो एनवायरनमेंट. द कंपनी माइक्रो एनवायरनमेंट. आज वी विल कवर द कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट. मार्केटिंग जॉब इज टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. मार्केटिंग की जॉब क्या है कि रिलेशनशिप डेवलप करना कस्टमर्स के साथ बाय क्रिएटिंग वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन. दिस इज नोन टू ऑल ऑफ अस. हम सबको इस बात का पता है कि कंपनी की जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके पे बिल्डअप होती है. मार्केटिंग की जॉब किस चीज़ पे बेस करती है? मार्केटिंग की जॉब बेस करती है इस बात के ऊपर कि कंपनी कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करे और उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे. मार्केटर्स कैन नॉट डू इट अलोन. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डू एवरीथिंग अलोन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट. मार्केटर्स को इसके लिए टीम चाहिए होती है.
Marketing success will require building relationship with the other company departments. Marketing की जो success है, it will require building relationships with the other company departments, which are suppliers, marketing intermediaries, customers, competitors, and various publics, which combine to make up the company's value delivery network. Value delivery network क्या होता है? Of course, marketer अकेला तो प्रोडक्ट ना वो बना सकता है, ना वो प्रोडक्ट जाके कस्टमर को दे सकता है. मार्केटर बेसिकली इस चीज का जामिन है, इस चीज को फाइंड आउट करता है that what is the basic need of the market, what is the basic want of the market, and he needs these all people जिनके नाम इधर मेंशन है to deliver the product to the customer. This is called value delivery network, जिसके अंदर आपकी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स शामिल हैं, बिकॉज कंपनी एक पर्टिकुलर मिशन के गिर्द काम कर रही है और ये तमाम लोग उस मिशन को अचीव करने के लिए अपनी अपनी वैल्यू दे रहे हैं. They all combine to make one value delivery network, which is the supplier, जो कि suppliers है, raw material supplier है. Marketing intermediaries वो लोग जो कि marketing के अंदर intermediaries का काम कर रहे हैं. Customers हैं, वो customers जो कि आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो B2B भी हो सकते हैं और B2C भी हो सकते हैं. कंपैटिटर्स हैं, कंपैटिटर वो लोग जो कि आप जैसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर दे रहे हैं, जो जिनके आपके अंदर और उनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है. एंड द वेरियस पब्लिक्स, और डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक, सोसाइटी की डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी है पब्लिक्स की, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कस्टमर इटसेल्फ इज बेसिकली द actor of the micro environment, which is the part of value delivery network. अगर पेपर में आपसे ये बात पूछी जाए that the company department, supplier, marketing intermediaries, customer, competitor constitutes to form, तो उसका जवाब होगा it constitutes to form value delivery network in the marketing, especially in the micro environment. सबसे पहला एक्टर है the company. सबसे पहला जो माइक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर है, दैट इज द कंपनी इटसेल्फ. इन डिजाइनिंग मार्केटिंग प्लान्स का क्या मतलब है? मार्केटिंग के प्लान्स को डिजाइन करने में मार्केटिंग मैनेजमेंट टेक्स अदर कंपनी ग्रुप्स इनटू द अकाउंट. फॉर एग्जांपल, कंपनी इटसेल्फ बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे और स्किल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर बेस करती है. कंपनी की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इस बात को डिसाइड करती है कि कंपनी का मिशन या कंपनी क्या काम करेगी या कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करेगी और कंपनी का बेसिकली क्या पर्सपेक्टिव होगा. आई थिंक वी ऑल नो अबाउट इट कि इन डिजाइनिंग द मार्केटिंग प्लान्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट टेक्स अदर कंपनी ग्रुप्स इनटू द अकाउंट एंड सच एज द टॉप मैनेजमेंट, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, ऑपरेशंस एंड अकाउंटिंग. Top management sets the company's missions, objectives, and broad strategies and policies. Other departments have impact on marketing department. Other companies का एक impact होता है marketing department के ऊपर. Under making concepts of all these functions, they must think customer, and departments should work in harmony to provide value. सबसे पहले इस बात को याद रखें that the company has got one factor. A marketing company should have only one factor in the mind. And that factor is to have the customer in the mind, to have the customer orientation in the mind. अगर customer की orientation नहीं है आपके ज़हन के अंदर, तो you can never make it. So in this regard, the thing which we want to understand over here कि जो कंपनी के बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं वो कंपनी को सपोर्ट करेंगे और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ सपोर्ट करेंगे. मार्केटिंग डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह ही काम करेगा, लेकिन कस्टमर के साथ वो ज्यादा डायरेक्ट होगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज द सप्लायर. द सप्लायर इज द सेकंड एक्टर इन द माइक्रो एनवायरनमेंट. Supplier form an important link in the company's overall customer value delivery system. Supplier problems can easily affect the marketing. Supplier कौन है? जो कि आपको supplies दे रहा है. For example, it can be a supplier जो कि आपको raw material provide कर रहा है. अगर supply के अंदर shortages आ जाए या supply के अंदर delays आ जाए या लेबर कोई लेबर स्ट्राइक हो जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए जिसकी वजह से काम हो ना पाए, तो वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को नुकसान पहुंचाता है.
क्योंकि जब प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा ही नहीं या कस्टमर तक प्रोडक्ट जाएगा ही नहीं तो डेफिनेटली नुकसान तो होगा ना कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को। और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कस्टमर किसी और को आपके ऊपर तरजीह दे दे और वो उधर चला जाए, which can actually make a problem in the entire system. So in this regard, supplier is also one of the actors in the micro environment. हम फॉर एग्जाम्पल माइक्रो हम इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास एक सप्लायर जिसको प्रॉब्लम हो रहा है हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचाने में, कंपनीज को हमेशा ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज के ऊपर अपना आप बिल्डअप करना चाहिए। सबसे पहले अपना आप उनको बिल्डअप करना चाहिए ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनीज जो हैं वो ऑल्टरनेटिव या कोई और लाए अमल इख्तियार ना करें। हमारे हाथ में एक चैनल अगर सिर्फ होगा तो वो बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक चैनल अगर किसी वजह से आपके लिए काम टाइम पे नहीं कर सकेगा तो देयर हैज टू बी एन अदर ऑल्टरनेटिव इन योर हैंड। ये हमारे हाथ में, दैट इज व्हाई माइक्रो एनवायरनमेंट इज अ कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट, बिकॉज हम इस चीज को अपने हाथ में कर सकते हैं। Most marketers treat their suppliers as partners in creating and delivering customer value. बहुत सारे मार्केटर्स जो हैं अपने सप्लायर्स को अपना पार्टनर कंसिडर करते हैं, बिकॉज पार्टनर वो बंदा है जो कि आपके साथ हर गुड एंड बैड टाइम में, दे आर द पार्टनर्स ऑफ द गुड एंड बैड टाइम्स। इनके बगैर आप वैल्यू को डिलीवर नहीं कर सकते टू द कस्टमर। थर्ड लेवल या थर्ड पॉइंट इन दिस इज द मार्केटिंग इंटरमीडियरी। दे हेल्प द कंपनी टू प्रोवाइड। मार्केटर इंटरमीडियरी कौन होते हैं? जो कि ब्रिज कर रहे होते हैं, मार्केट को ब्रिज कर रहे होते हैं। ब्रिजिंग क्या होती है? कस्टमर से कंपनी को मिला रहे होते हैं। दे हेल्प द कंपनी टू प्रोवाइड, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स टू द फाइनल बायर्स। ये वो लोग हैं जो कि कंपनी को हेल्प कर रहे हैं। दे हेल्प द कंपनी टू प्रोवाइड, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये वो लोग हैं जो कि कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सहूलत सेल करने के लिए और कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस तक? फाइनल बायर तक। इंटरमीडियरीज के अंदर कौन लोग आते हैं? कौन लोग ऐसे हैं जो कि कंपनी को कस्टमर के साथ कनेक्ट करते हैं? सबसे पहले हैं रीसेलर्स। रीसेलर वो लोग हैं जो कि कंपनी से प्रोडक्ट को खरीद के अपनी शेल्फ्स पे रखते हैं और उनको दोबारा रीसेल करते हैं फाइनल कंज्यूमर तक। फिर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म, वो कंपनीज जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोडक्ट कंपनी से उठाती हैं और अपने पास गोदाम्स में, वेयर हाउसेज में रखती हैं। फिर मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज हैं, ये वो एजेंसीज हैं जो कि कंपनी के बिहाफ पे मार्केटिंग करती हैं। फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, बैंक्स जो कि फराहम करते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं कंपनी को पैसे, लिक्विड कैशेस, जिसकी बेसिस के ऊपर कंपनी जो है अपने काम को फ्लॉलेसली कवर करती जाती है। तो दीज आर समथिंग दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर प्लानिंग ऑन। I would be going about it. I would be telling you about who are the resellers. The resellers basically are the distribution। सबसे पहले हमारे पास resellers हैं who are the physical distribution firms or distribution channel that firm जो firm को that helps the company to find customers or make sales to them. These include, अब आप इस बात को नोट कर लें कि रीसेलर के अंदर कौन इंक्लूड होता है। रीसेलर इंक्लूड्स होलसेलर्स एंड रिटेलर्स who buy and resell the merchandise। मर्चेंडाइज का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो वो कंपनी से उठाते हैं। रीसेलर वो लोग हैं जो कि आपका प्रोडक्ट होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से उठाते हैं और आगे सेल करते हैं। Traditionally, it has not been very difficult for companies to select and partner with resellers, partly because of their strong brand franchise and partly because of the fragmented and small size of most resellers in the Indian subcontinent. However, the future is going to be very different. इसकी एक एग्जाम्पल कोट करूंगी मैं आपके लिए कि इन पाकिस्तान the entry of global giants like
ये कैश एंड कैरी आपका कौन सा है, हाइपर स्टार, मीन्स दैट मैन्युफैक्चरर्स विल नाउ बी फेसिंग लार्ज एंड पावरफुल इंटरमीडियरीज. मैन्युफैक्चरर्स के लिए अब बहुत बड़े बड़े इंटरमीडियरीज हैं इन द शेप ऑफ हाइपर स्टार. एंड क्या करना पड़ता है कि these organizations frequently have power to dictate terms or even shut smaller manufacturers out of the large markets. ये वो लोग हैं, ये जो बड़े बड़े कैश एंड कैरीज या बड़े बड़े हाइपर स्टार जैसे स्टोर्स हैं, इनके हाथ में बहुत गेम होती है किसी भी छोटे ब्रांड को बड़ा बनाने की. बिकॉज अगर वो रखेंगे तो वो लोगों की नजरों में लेकर आएंगे उस प्रोडक्ट को, और जब वो लोगों की नजरों में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम बनेगा. The next point is, just wait a second, give me a moment. Okay. तो इस चीज के अंदर नेक्स्ट जो हमारा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स. These are the firms that help the company to stock and move goods from their points of origin to their destination. Physical distribution firms वो firms हैं जो कि अपने पास कंपनी के behalf के ऊपर जो चीज़ें हैं उनकी गोडाउनिंग कर लेती हैं, उनकी वेयर हाउसिंग कर लेती हैं और फिर स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं. मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज are the marketing research firms, advertising agencies, media firms, and marketing consulting firms that help company to market their products. Then there are the financial intermediaries that help finance transactions or insure against the risks associated with the buying and selling of the goods. Like suppliers, marketing intermediaries form an important component of the company's overall value delivery system. To create satisfying performances, to create a satisfying relationship with the customers, the companies must do more than just optimize its own performance. That keep on these people, ये जो जितने भी आपके साथ marketing intermediaries आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सबके साथ कंपनी की जो रिलेशनशिप है उसका स्ट्रॉन्ग होना eminently important है. Then we have another point, which are competitors. Competitors are again very very important people जिनकी know how होना कंपनी के लिए बहुत important है. The marketing concept states that to be successful, a company must provide greater customer value and satisfaction than its competitors do. लेकिन ये बात तो हम तब कर सकते हैं ना जब हमें कस्टमर्स की, हमें कंपेटिटर्स की परफॉर्मेंस का पता है. तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप मार्केट के अंदर जो मार्केटर है वो एप्टीट्यूड रखता हो कि वो कंपेटिटर के बारे में जानकारी सारा वक्त रखने की कोशिश करे, चेक रखे कि व्हाट कंपेटिटर्स आर बेसिकली डूइंग, व्हाट आर दे रियली ऑफरिंग. द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट टू बी सक्सेसफुल अ कंपनी मस्ट प्रोवाइड ग्रेटर कस्टमर वैल्यू and satisfaction than its competitor do. Companies also must gain strategic advantage by positioning their offering strongly against competitors offering in the mind of the customer. आप सबसे पहले मार्केट को सेगमेंट करते हैं, मार्केट को टारगेट करते हैं और फिर मार्केट को पोजीशन करते हैं. जब आप पोजीशन करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं वो कस्टमर की नीड के मुताबिक इस तरह से पोजीशन करते हैं कि कस्टमर के दिमाग में आपकी जगह आपके कंपेटिटर से बढ़ के हो, उनके दिमाग में आपके बारे में जो एक परसेप्शन है वो क्लैरिटी से आए. नो सिंगल कंपेटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज बेस्ट फॉर ऑल कंपनीज. हर कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेटजी या कंपेटिटर को डील करने की स्ट्रेटजी अलग-अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर बिजनेस. Each firm should consider its own size and industry position compared to those of its competitors. And large firms with the dominant position in an industry use different strategies to find out what their competitors are doing and what they should be doing in order to satisfy their customers. The next is the public. Public is any group that has an actual or potential interest in or it impacts the organization's ability to achieve objective. Public क्या है? Common public. लेकिन इस common public के अंदर भी
डिफरेंट तरह के ग्रुप्स होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस कंपनी की रेप्यूटेशन के ऊपर होता है. So the company marketing environment has also includes various publics. A public is any group that has an actual or potential interest or impact on an organization's ability to achieve its objectives. We can identify these 7 types of public. सबसे पहली जो पब्लिक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल पब्लिक. इसको आप फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी कह सकते हैं. दिस ग्रुप influence the company's ability to obtain funds. ये वो देखिए कंपनी को बहुत इंपॉर्टेंटली फंड्स चाहिए होते हैं अपने 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 काम को चलाने के लिए. वो सारे फंड्स और पैसे या लिक्विडिटी उनके अपने पास हो ये मुमकिन नहीं है. तो उनको जो फैसिलिटेट करती है वो है फाइनेंशियल पब्लिक्स. दिस ग्रुप इन्फ्लुएंसेस द कंपनीज एबिलिटी टू ऑब्टेन फंड्स. Banks, investment houses, and stockholders are the major financial publics. Then is the media public. वो लोग जो कि आपके बारे में खबर रसानी करते हैं, खबर पहुंचाते हैं, वो भी आपके बारे में, वो भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अहमियत रखते हैं. They carry the news, they carry the features and editorial opinions. It includes newspapers, the magazines, the radio and television. And you need to keep the relationship with them so that they carry out that news जो आप चाहते हैं कि मार्केट तक फ्लोट हो. गवर्नमेंट पब्लिक्स. मैनेजमेंट मस्ट टेक गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स इनटू द अकाउंट. जिस कंट्री में आप रिजाइड कर रहे हैं उधर की गवर्नमेंट के बारे में आपकी बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है. Marketers must often consult the company lawyers on issues of product safety. We need to follow the different rules, regulations, laws and legislations of the country. क्योंकि जो कंट्री का लॉ और रेगुलेशन है वी नीड टू अबाइड बाय दैट. अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. और इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी के लॉयर्स हों जो कि उनको लॉ और लेजिस्लेशन के ऊपर गाइडलाइन दे. और ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, ये हम कर सकते हैं अपने नाम को आगे ले जाने के लिए. अगला जो ग्रुप है या अगला जो माइक्रो एनवायरनमेंट का एक्टर है वो है सिटीजन. सिटीजन मीन शहरी. एक्शन मीन्स जो काम वो कर सकते हैं. Citizen action publics. A company's marketing decisions may be questioned by the consumer organizations. Consumer organizations एक citizen action group है जो कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकता है कि इसके अंदर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और कंपनी आंसरेबल हो सकती है उस चीज़ को लेके. एनवायरमेंटल ग्रुप्स हो सकते हैं. कुछ ऐसे ग्रुप्स का सिटीजन ग्रुप्स जो कि काम कर रहे हैं अपने डिफरेंट नोशंस के लिए, अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए. कुछ ग्रुप्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज को देख रहे होते हैं. और अगर कोई भी कंपनी अपना लेट सपोज पानी का निकास एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है तो उसके ऊपर इस बात का एलिगेशन लग सकता है. इनको दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए. माइनॉरिटी ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो कि आपके फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी माइनॉरिटीज पाई जाती हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, जो कि डिफरेंट अदर रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिजाइड इन द कंपनी. इन सब का ख्याल रखना, इन सबको जहन में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज बनाना ये कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आना चाहिए. एंड द अदर्स, इट्स पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कैन हेल्प इट स्टे इन टच विद द कंज्यूमर एंड सिटीजन ग्रुप्स. कंपनी के अंदर एक पब्लिक रिलेशन का या पीआर डिपार्टमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इन तमाम ग्रुप्स के साथ कन्वर्स करे और स्ट्रेटजीज बनाए इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देम, बिकॉज इन लोगों का अमल दखल कंपनी के रेपुटेशन से बहुत ज्यादा होता है. फिर आती हैं जी लोकल पब्लिक्स. लोकल पब्लिक्स वो पब्लिक्स हैं, दिस इंक्लूड्स नेबरहुड रेजिडेंट्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. लार्ज कंपनीज यूजुअली अपॉइंट कम्युनिटी रिलेशन ऑफिसर टू डील विद द कम्युनिटी, attend meeting, answer questions and contribute to the worthwhile causes. It also comes in the citizen action public. अब आ जाता है जी जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक, a company needs to be concerned about the general public attitude towards its product. जनरल कंपनी के अंदर वो तमाम लोग जो कि जनरली आपका नाम सुनते ही एक इमेज आपका जहन में रखते हैं एक, और इसके बारे में पता कंपनी लगा सकती है बाय एक्चुअली हैविंग एन इंटरव्यूइंग सेशन from the customers by going into the general public and asking about themselves कि उनके बारे में लोगों का क्या सोच है. So you can get an idea.
So this is something, an internal marketing research, a marketing research that you carry out regarding your public image. Then there is an internal public. This group includes workers, managers, volunteers, and the board of directors. Large company use newsletters. Internal public वो public है जो कि कंपनी के अंदर काम कर रही है. कंपनी के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं और कौन कौन कंपनी के लिए काम करता है, इस बात की नो हाउ होना कंपनी के सारे एम्प्लॉइज के लिए इंपॉर्टेंट है. A company can prepare marketing plans for these major publics as well as for its customer markets. Suppose the company wants a specific response from a particular public, such as favorable word of mouth. आप चाहते हैं कि आपकी एक जनरल पब्लिक आपके बारे में एक अच्छा word of mouth, एक अच्छा opinion रखे, or donations of time. The company would have to design an offer to this public that is attractive enough to produce the desired response. For example, एंग्रो ने एक अपना प्रोडक्ट बनाया जिसको उन्होंने रुपया या आई थिंक एंग्रो इजी पैसा का नाम दिया या एंग्रो पैसा का नाम दिया, जिसके अंदर उन्होंने रिटर्न्स का एक प्रोडक्ट बनाया कि जिस पर अगर एक कम्युनिटी एक पैसा डिपॉजिट कराएगी एंग्रो के अंदर, उसके अगेंस्ट पीपल विल अर्न मनी अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल बैंक्स प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं उन लोगों के लिए, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोगों के पैसों से अगर काम करना चाहती है और वो चाहती है कि पैसे उनके अंदर इन्वेस्ट करे, तो इन बहबूद के अंदर वो एक ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं पब्लिक के लिए जिसके अंदर पब्लिक अपना पैसा उधर रखवाए और उसके बिहाफ पे उनको उसका प्रॉफिट मिले. सो दिस इज हाउ कंपनीज एंड द गवर्नमेंट्स डील इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल बी डिस्कसिंग द कस्टमर्स. As we have emphasized, customers कौन सी तरह के होते हैं. कंज्यूमर मार्केट्स हैं, बिजनेस मार्केट्स हैं, रीसेलर मार्केट्स हैं, गवर्नमेंट मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं. मैंने आपके साथ मार्केट्स को डिस्कस किया. एक समराइजेशन के अंदर we need to cater and read about all the markets. We need to do the market perspective. We need to understand the consumer and business markets and need to touch their needs. And next time class I would be talking about the companies. एक overall view मैं देती चलूँ और उसके बाद फिर आपसे questioning की तरफ आऊँगी. माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स. आज की जो लेक्चर था, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होती है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट की कितनी टाइप्स हमारे पास हैं, और उस एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से एक्टर्स हैं, और ये वो तमाम एक्टर्स हैं जिनको हम अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से और अपनी रिलेशनशिप की वजह से किसी ना किसी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं. वी कैन रियली डू दैट. The other kind of environment is the macro environment. The macro environment is an environment which is not in our control. मैं ये चाहूंगी कि next time आप जब आएंगे तो macro environment के बारे में पढ़कर आएं, क्योंकि next time मैंने demographic environment को बहुत डिटेल में interactive session के अंदर डिस्कस करना है. Now I am coming back to the meet interface and I will be taking your questions. By now I have got 11 people with me. Can I take the questions from you people? Any questions? आफ्ताब. मैम एक तो वन बाय वन अपने माइक्स को खोलते जाए. एक तो कंपनी वैल्यूज डिलीवरी, इसका थोड़ा सा बता दें. इधर ही रुक जाओ. कंपनी वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क. मुझसे अभी आफ्ताब का क्वेश्चन है, कंपनी वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क क्या है? वैल्यू मींस टू प्रोवाइड द बेनिफिट, डिलीवरी मींस टू मेक रीच टू द कस्टमर, नेटवर्क मींस कि वो लोग जो आप जब इंटरनेट के नेटवर्क पढ़ते हो तो डिफरेंट कंप्यूटर्स मिलकर नेटवर्क बनाते हैं ना. इसी तरीके से वैल्यू को डिलीवर करने के लिए भी मार्केटर अकेला नहीं है, उसके साथ सप्लायर होना इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर होना इंपॉर्टेंट है, रीसेलर होना इंपॉर्टेंट है. एंड व्हेन वी कनेक्ट ऑल इट बिकम्स द नेटवर्क. ठीक है आफ्ताब? वैल्यू डिलीवर करने का नेटवर्क. ओके. एनी अदर क्वेश्चन आफ्ताब? एनी अदर क्वेश्चन? अहमद उमर. अहमद उमर.
अहमद उमर अब्दुल रहमान, any question? फातिमा फारूक, ओके ओके, हसन रजा, हसन, हसन कोई क्वेश्चन आपका? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? am I audible to you all? मैम वो जो आपने बुक शेयर की है क्लास में, जी, वो कोई और है जिस, और जो आप जिसे एग्जाम्पल रीड करते हो उसमें वो मिलती नहीं है? एग्जाम्पल्स तो मैं खुद भी देती हूँ ना बीच में। नहीं, वैसे भी आप ये रीसेलर और बुक फिजिकल बुक डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स जो उधर डेफिनेशन है, और आप जो ने इधर वीडियो में बताई है वो कोई और है, मतलब थोड़ा सा चेंज है। नहीं, वर्ड्स के अंदर डिफरेंस होगा। हाँ, वर्ड्स के अंदर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि बेटा जो एडिशन अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, मैंने वो शेयर किया है, मटेरियल तो सेम है। अगर आप उसको उस वर्ड्स में भी लिख दोगे तो वो गलत तो नहीं होगा। बस यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। आप इसको और उसको मैच करोगे तो कॉन्सेप्ट अलग नहीं होगा, एग्जाम्पल्स अलग बिल्कुल हो सकती हैं। इक्रमा, जवेरिया अजहर, किंजा फातिमा, मुझसे अस्सलाम कोई वालेकुम क्वेश्चन मैम। पूछने तो पूछें जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। किंजा क्या हाल है आप? मैं ठीक हूँ, आप वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल कैसे हैं? ठीक हूँ। लेक्चर आपको समझ आया आज का? यस मैम। ऑल मैम वेल मुझे बेटा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म एक दफ़ा दोबारा बता दें। ओके, फिजिकल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग। ठीक है, जो भी चीज आपके सामने बिल्डिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है या जिसको आप देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, फिजिकल, आप उस चीज को कहते हैं समथिंग टैंजिबल। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूट करना और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के जो गोदाम होते हैं, ठीक है, कंपनीज के गोदाम होते हैं। गोदाम मीन्स वो जगह जहां के ऊपर आप अपनी इन्वेंट्री स्टॉक को, रखते आप हैं। अपने चीजों को स्टॉक करते हैं। यस, दैट्स द राइट वर्ड। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स वो फर्म्स हैं जो कि कंपनीज को जगह प्रोवाइड कर सकती हैं चीजों को स्टॉक और वेयर हाउस करने की, जहां से चीजें, फॉर एग्जांपल कंपनी अगर कराची में है तो उसका कोई ना कोई वेयर हाउस लाहौर में भी तो होगा। हर रोज चीजें रिटेलर के पास जहाज से सीधा रिटेलर के पास थोड़ी आएंगी, वो तो ट्रक की सूरत में या जिस जिस जो भी तरीका आपकी फ्रेट का है उसकी सूरत में गोदामों तक पहुंचती है और फिर वो डिफरेंट जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी तो एक वो लोग हैं जो कि इंटरमीडियरीज हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट्स को फाइनल यूजर तक। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स कहलाती हैं। ठीक है किंजा? ओके मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन क्लास? एनी अदर क्वेश्चन? मैम आपने जो मानूर हमें आप? जी, मैम जो आपने हमें माइक्रो पढ़ाया है, माइक्रो एनवायरनमेंट, अभी सिर्फ इस वीक में आपने हमें माइक्रो एनवायरनमेंट ही पढ़ाया है। मैक्रो आप अपने नेक्स्ट वीक में पढ़ाएंगी? नहीं बेटा, आपने अगर नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको, अगर आप नोट करो तो मैंने आप लोगों के लिए 2 लेक्चर्स यस अपलोड मैम। किए हुए हैं, लेक्चर नंबर 8 एंड लेक्चर, आप उनको जरा सुनो। तो उसके अंदर आपका मैक्रो एनवायरनमेंट भी फिल हुआ हुआ है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं उसका इंटरेक्टिव सेशन लूंगी। ठीक है, वहाँ वो मैं उसमें से आपको सवाल आपके थे, साथ काफी उसका सारे इंटरेक्टिव। क्वेश्चन थे उसमें, डेमोग्राफिक वाले में। ओके, आप पूछ सकती हो, वैसे मैं आपको जवाब दूंगी। आपने क्या क्वेश्चन पूछना उसमें से? मैम वो पॉपुलेशन के आपने बारे में बताया था ना कि पाकिस्तान में इतनी पॉपुलेशन, तो मुझे वो समझ नहीं आया था बिल्कुल भी पॉइंट। ओके किंजा, मैं बाकियों के लिए भी, आप लोग प्लीज जाके इस वीकेंड के ऊपर मेरे दोनों लेक्चर्स को सुनिएगा जो मैंने अपलोड किए हैं। उनका इंटरेक्टिव सेशन जब मैं लूंगी तो डेफिनेटली इस पे बात करेंगे।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, demographic environment is one of the largest environment that has to be studied. Number 1 ये macro environment है, number 2 ये controllable environment नहीं है, number 3 हम लोगों ने अपनी माइक्रो एनवायरनमेंट को मैक्रो एनवायरनमेंट के मुताबिक ढालना होता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत यह है कि मैक्रो एनवायरनमेंट है क्या चीज। मैक्रो एनवायरनमेंट बेसिकली एक लार्जर एनवायरनमेंट है जिसका एक जो एक्टर है वो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है। मार्केटर ये कहता है या एनवायरनमेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि मार्केटर इस बात को अंडरस्टैंड करे कि जिन लोगों को उन्होंने प्रोवाइड करना है वो लोग पॉपुलेशन में कितने। एक्चुअली में तो हमने सेगमेंट या टारगेट तभी करना है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहती है सेगमेंट करो, टारगेट करो, पोजीशन करो, लेकिन सेगमेंट करो किसको? सेगमेंट करो पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ सर्टेन पर्टिकुलर कंट्री और अ प्लेस। हम लोगों ने ये देखना है कि उस कंट्री में, डेमोग्राफिक्स में हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन को हम सेगमेंट करते हैं लोगों की एज की बेसिस पे। क्योंकि एक बात याद रखें कि जिस टाइम पे आप 15 साल की थी उस वक्त आपकी चॉइस कुछ और होगी और आज के दौर में आपकी चॉइस कुछ और होगी। ऐसा है कि नहीं है? तो क्या ऐसा है ना? तो एज का इम्पैक्ट आपकी चॉइस पे पड़ता है और उस चॉइस का इम्पैक्ट प्रोडक्ट की बाइंग पे पड़ता है और आपका रुझान बदल जाता है। तो इस रुझान को पढ़ना एज के पर्सपेक्टिव से किसके लिए जरूरी है? मार्केटर के लिए जरूरी है, ताकि मार्केटर इस बात का अंदाजा लगा सके कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं मैंने उसको टारगेट किस एज के लिए करना है। 10 से 15 साल की उम्र के लिए करना है, 15 से 20 साल की उम्र के लिए करना है, 20 से 25 साल की उम्र तक के लिए करना है। सो डेमोग्राफिक स्टडी आपको इस बात का एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जाके मार्केट को एज के मुताबिक पढ़ें। नंबर 2, आप मार्केट को पढ़ें अकॉर्डिंग टू दी जेंडर, कि एक पॉपुलेशन साइज के अंदर अगर खवातीन है तो खवातीन का नंबर कितना है। अगर नंबर आपके पास 45 या 49 या 51%, पाकिस्तान के अंदर 51% अगर खवातीन है तो उसके अंदर कितनी खवातीन लाए करती हैं एडल्ट के अंदर, कितनी लाए करती हैं मिडिल एज के अंदर, कितनी लाए करती हैं ओल्ड एज के अंदर, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को उसके मुताबिक यस। तो यही हमें, अब तुम ये देखो कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, मेरी असाइनमेंट जो भी थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह आपको पोस्ट होगी वो इसी बात के ऊपर होगी। अभी तो माइक्रो एनवायरनमेंट पे होगी, लेकिन वो ये इसी बात पे पोस्ट होगी कि क्यों जरूरी है। आप सेगमेंटेशन करते हैं किस बेसिस पे? सेगमेंटेशन जाके लाइन या हाशिए तो नहीं लगाने ना, आपने हाशिया तो नहीं लगाना कि ये सेगमेंट है ये सेगमेंट है। यू नीड टू सेगमेंट द मार्केट इन ऑर्डर टू हैव एन एज गैप्स, के एज क्या चल रही है और उन पर्टिकुलर, या आपके पास एज की बेसिस के आप सेगमेंट करोगे या आप सेगमेंट करोगे इनकम की बेसिस के ऊपर भी। इनकम बेसिस क्या है कि पर्टिकुलर मार्केट के अंदर अगर औरतें काम करती हैं तो औरतों की इनकम बेसिस क्या है, क्योंकि अगर वो इनकम गेज कर रही हैं या वो इनकम अर्न कर रही हैं तो डेफिनेटली बात ये कि जो इनकम अर्न कर रहा होता है यूजुअली वो डिसीजन मेकर होता है। तो मार्केटर को ये देखना पड़ता है कि जो अर्न कर रहा है, औरतों का डिफरेंट, जब वो शॉपिंग पे जाती हैं उनकी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, वो क्या चीज बाय करती हैं। तो दे नीड टू टारगेट द मार्केट एंड पोजीशन द मार्केट इन दैट पर्टिकुलर वे। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को वैसे मैं एक इंटरेक्टिव सेशन में जरूर कवर करूंगी। ये बात अभी तक समझ आई है? जी, अभी जो आपने जो समझाया वो तो समझ आ गया, लेकिन आप एक और दफा करेंगे ना उसमें? हाँ, वो मैं लाइन अप करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आई कैन सी मानूर, आपको समझ आया बेटा आज का लेक्चर? मैम मुझे ये समझ नहीं आया, मार्केट इंटरमीडिएरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज का मतलब है somebody who is bridging the market। ब्रिज का बात समझती हो? ब्रिज क्या करता है? पुल बेसिकली क्या करता है? पुल बेसिकली एक जगह को दूसरी जगह से मिलाता है। जी। इंटरमीडियरीज का मतलब ये है कि लेट्स सपोज महानूर अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो महानूर खुद तो जाके प्रोडक्ट को कस्टमर के घर पे थोड़ी बेचेगी। महानूर B2B तरीके से रिलेटेड है डिफरेंट रिटेलर्स के साथ, डिफरेंट होलसेलर्स के साथ, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाएगी। तो जो लोग महानूर के प्रोडक्ट्स अपने पास रखेंगे वो महानूर के प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ कनेक्ट करेंगे। वो लोग आपकी थर्ड पार्टी या इंटरमीडियरीज कहलाएंगे जो कि आपको आपके कस्टमर के साथ कनेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर महानूर?
जी मैम। जैसे आपके रिटेलर हैं, हाइपरस्टार बेसिकली रिटेलर है जो कि रीसेलर्स भी कहलाते हैं और किसी ना किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं जाके आपके इंटरमीडियरीज भी हैं जो आपको आपके कस्टमर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट को आपके कस्टमर के तक पहुंचा रहे हैं। हैव आई मेड माय सेंस क्लियर? जी मैम। ऑल राइट, मोहम्मद अरसलान असलम। यस मैम। बेटा क्लियर है आपको या कोई यस। क्वेश्चन करना है आपको? नहीं मैम, क्लियर है, हो गया। ओके बेटा। कमर सईद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कमर, आप ठीक हैं? यस मैम, आप किसमें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों को सबको, आई एम रियली मिसिंग माय क्लास वेरी मच। बस मुझे इतना बताओ, आप लोगों को समझ आया है अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है? यस मैम, समझ आया। मैम मुझे बस एक पॉइंट क्लियर कर दें कि हम लोग जो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क में हम लोग तो जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, हमारे जो मेजर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे उसमें तो वो पांचों हमारे कवर हो रहे थे। कंपनी भी हो रही थी, कंपैटिटर भी हो रहे थे, कस्टमर्स भी हो रहे थे। लेकिन इसमें जो नया एडिशन हुआ है पब्लिक का, तो मैम कस्टमर जो है वो हमने पढ़ा था कि वो हमारी मार्केटिंग करता है प्रोडक्ट की, वो अपनी बिहाफ पे भी करता है। तो मैम ये पब्लिक जो है ये कस्टमर ही है हमारा, या ये अलग से जो है ये हमारे? अब मैं तुम्हें बताती हूँ। देखा, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बेसिकली जब हम बहुत आगे जा रहे होते हैं ना, जब हम चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम सोसाइटी को पब्लिक के अंदर डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। हमने सोसाइटल नेटवर्क पढ़ा था ना, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। यस मैम। हमने सोसाइटी को पब्लिक, सोसाइटी क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक है ना। यस मैम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक है। तुम ये समझो कि हम सोसाइटी को कैटेगराइज कर देते हैं बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक्स के अंदर। समझ में आई है? यस मैम। पब्लिक कितनी तरह की है? कौन हम स्टेक होल्डर बेसिकली कौन होते हैं? वो लोग जिनका हमसे कोई ना कोई स्टेक होता है। तो बैंकों का भी हमारे से स्टेक है, एक तरह की पब्लिक ये हो गई। मीडिया का भी हमारे से, मतलब हमने उनको पब्लिक का नाम दे दिया। हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट पब्लिक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पब्लिक है। कैटेगरी जब आप बना लेते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि इस कैटेगरी का एक मकसद क्या है, व्हाट इज द बेसिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर पब्लिक। फॉर एग्जांपल, सिटीजन एक्शन पब्लिक। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं या बहुत ऐसे छोटे ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो के मुल्क की इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही होती हैं। कोका कोला के ऊपर, कोका कोला को आप सब जानते हो, कोका कोला के ऊपर एक जमाने में एक बहुत बड़ा इल्जाम ये लगा कि वो लोग जो हैं प्रोडक्ट अपनी कोक के अंदर एक कोकेन का थोड़ा सा, कोकेन ड्रग है, कोकेन को थोड़ा सा ऐड करते हैं। और ये बात पकड़ी गई बाय सम काइंड ऑफ अ सिटीजन एक्शन पब्लिक। कोई कंपनीज होती हैं जो कि हर एक के पीछे कोई एक बिल्कुल होता है जो कि चीजों को देख रहा होता है। क्या पता वो एक ऐसी कंपनी हो जो कि प्रोडक्ट को टेस्टिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने टेस्ट किया और कोक के अंदर से ट्रेस नजर आए कोकीन के, और ये बात रिपोर्ट हो गई जिसके ऊपर कोक को पेनल्टी देनी पड़ी इस बात की कि वो कोकेन का ट्रेस ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद देखो, ये वो पब्लिक है जो कि ये वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि लोगों की वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स हैं। और वो सोसाइटी की वेलबींग के लिए उन्होंने कोकेन को हाईलाइट किया और कोक ने इसकी पेनल्टी पता नहीं कितने $मिलियन भरी और फिर अपने आप को क्लियर किया कोकेन को निकोटीन के साथ, निकोटीन हमारी चाय में होती है, निकोटीन के साथ रिप्लेस करके। तो ये सारा काम सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स का है। बेसिकली पब्लिक जो है, डिवीजन ऑफ पब्लिक या कैटेगरी ऑफ पब्लिक इज द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में हम डिफरेंट पब्लिक्स को देखते हैं और उनके इंटरेस्ट को देखते हैं ताकि हम क्लियर हो जाएं कि डिफरेंट पब्लिक्स के क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। गॉट इट? यस नो मैम। प्रॉब्लम। एनीथिंग एल्स क्लास? मैम जो आपने सलमान असाइनमेंट महमूद बट देनी। यस मैम। बड़े लोग लेट आए हो, क्यों लेट आए हो बेटा? मैंने तो तुम लोगों की वजह से क्लास लेट की थी। सॉरी मैम, मुझे काम था थोड़ा सा। ऐसे ना लेट हुआ करो। नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऑनवर्ड्स ना मुझे आप लोग बता दो, मुझे ना क्लास में पोस्ट कर दो कि आप लोगों के लिए सबसे अच्छा टाइम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का क्या है, ताकि मैं अपनी क्लास उसी टाइम पे स्केड्यूल करूं। अगर तुम लोग सुबह 8 बजे, तुम लोग अब आगे रोजे आ रहे हैं, आई टेक केयर ऑफ इट, आप लोग सो रहे होगे, लेकिन आई वुड
लेकिन मैं ये बात अप्रिशिएट करूंगी कि अगर थोड़ी देर में आप लोग मुझे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एक टाइम बता दें जिस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंटरेक्शन के बगैर आप लोगों को उस तरह समझ नहीं आएगा जितना अच्छा चैप्टर 1 समझ आया था। तो जितनी इंटरेक्शन करूंगी उतनी समझ आएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अग्री कर रहे हो मेरे साथ? यस यस मैम। मैम, ये तो कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम जी मैम। दानियल। हाँ मैम, जी, हेलो जी, मैंने आपसे वालेकुम एक सलाम। बात वालेकुम करनी है। सलाम जी मैम दानियल, मैं इस टाइम ऑफिस में हूँ, अगर करें मैं बाद में लेक्चर जी आपका जी। रिकॉर्डेड सुन लूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा? ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, नहीं मसला तो नहीं होगा, तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। दानियाल, ये वाला लेक्चर भी अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगी। ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप बिल्कुल सुन सकते हो बेटा। बट ये है कि कभी कभार अपने ऑफिस में भी बैठ के हेडफोन कान पे लगा के सुनना चाहो तो सुन भी सकते हो। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, ये अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैं वैसे आपको सुन रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। जी, एनीवन एल्स? मैम आपने जो असाइनमेंट की पोस्ट की थी वो कैसे करनी है? असाइनमेंट कैसे आपको सबमिट करानी है? ओ भाई, मैंने तो पोस्ट ही नहीं की अभी तक। आपने असाइनमेंट का लिखा हुआ है अभी ना? तो करूंगी ना। अच्छा, वो कैसे, मतलब कि किस तरह करके आपको सबमिट करानी है? मेल करनी है, क्या करना है? हाँ, मेल करनी है आपने मुझे। यू गोइंग टू ईमेल मी, ईमेल। ठीक है? सो ठीक तो है। एनीवे क्लास, थैंक यू वेरी मच। एंड और मैं जो जैसा भी करूंगी मैं इंस्ट्रक्शंस में सब लिख के भेजूंगी, सो डोंट वरी मानूर। ओके, परेशान ना हो, ओके अभी तो ओके मैंने मैम। असाइनमेंट दी नहीं। ओके बेटा, दैट मार्क्स एन एंड। आप सबको बहुत बहुत रमजान की मुबारक हो, और आपको अल्लाह भी। करे हम सारे बहुत जल्दी खैर मिलें, सो मुबारक। दैट वी कैन हाँ। कैरी आउट विद। मैम एक थैंक यू बेटा, क्वेश्चन है आप मैम। ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से। कीप्स ओके मैम। जी जी मैम जी जी मैम आप ना प्लीज थोड़ा जी थोड़ा जी। सा कम कम पढ़ाएंगे ना, इतना काफी ज्यादा पढ़ा दिया आपने। चलो किंजा, ये कोई बात तो हुई? थोड़ा सा अभी कम कम, तो ज्यादा क्योंकि पढ़ाया ही नहीं है। मैम देखिए असाइनमेंट, इतनी सारी असाइनमेंट्स भी हैं अभी ना। मैम आपका थोड़ी लेक्चर होता है, मतलब और भी काफी सारे लेक्चर्स होते हैं और उनकी भी जी असाइनमेंट्स हैं। जनाब, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगी, जिसको आप थोड़े से वक्त में कर लेंगी। माइक्रो एनवायरनमेंट के मुताबिक दूंगी, जो पढ़ाऊंगी उसी के बारे में दूंगी। ये नहीं नहीं लेक्चर समझ आ गया ना तुम्हें? लेक्चर से समझ हैं? आया कि मतलब आप जो पढ़ा रही, मतलब कि जो आपने जो स्लाइड्स वगैरह डाली हैं, हम्म। फिर काफी सारा मतलब कि काफी ज्यादा मतलब याद करने वाला काम अभी रहता है इसलिए। चलो कोई बात नहीं किंजा, यू टेक योर टाइम, डोंट वरी। आप कर लोगी, मुझे पता है। अगर आपको समझ आएगी, जैसे चैप्टर 1 समझ आया, अच्छे से हो गया, ये भी बार बार हम इंटरेक्टिव सेशन में रिवाइज करेंगे, तो ये भी आपके ज़हन में बैठ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो अच्छा आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए बेटा। डोंट वरी एट ऑल। अच्छा किंजा हाजमुला खाओ, सब काम हजम हो जाएगा। अच्छा, तो मार्केटिंग कर लो अपनी इसकी। चलें सलमान, इट इज स्टिल रिकॉर्डिंग। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। एंड इंशाल्लाह ये अपलोड भी होना होता है, सो देखा कीजिए। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से ओके मुलाकात होगी। मीनवाइल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वेरी सेफ टाइम एट योर होम्स। ओके, थैंक यू मैम। यू टू। अल्लाह हाफिज़ थैंक मैम, यू टेक बेटा। अल्लाह केयर। हाफिज मैम। हाफिज मैम। खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।